Okay, before Okay. we start, promo के लिए we have to do with this one small thing, okay? First, we all do this. एक साथ. I'll say 1, 2, 3. All three of us have to do this. Okay. Okay. 3, 2, 1. 1, Okay. 2, 3. Eh. Okay. Yes. So All that's right, all how right. we begin our episode number 5. First of all, 5. I'm so happy about this episode. This episode is very, very special because this is our first ever episode with a guest. Yes. Dikshan Arya, thank you so much for joining us today. मेरा भी सौभाग्य है guys. This episode is also very special because after a lot of coming through technical hurdles, we are finally here with probably a little bit better lighting, some good mic quality, and we are finally making it even better, which we were trying to do since so long. So yeah, I am super, super excited to begin with this episode. So first of all, I would like to introduce our listeners to Dikshant Arya. I will start by trying to go back to what was my first memory of Dikshant. I was just thinking about it and मुझे एक तो काफी याद आता है कि we walked a fashion show, like college का एक fashion show था 2019 में. We were together in that one. हाँ भाई, And वो लाइन I अप used था to रहे. see him during the practice hours वगैरह. So that was actually my first memory of you. But since then, I've always found you to be a little intimidating. It was only after you became friends with Harini, I was like, okay, नहीं approachable भी है. हाँ भाई, उस समय थोड़ा तो इंटिमिडेटिंग लगता, ऐसे शांत शांत सा रहता भाई. तो लेडी गागा का पोकर फेस हमेशा बना रहता था भाई चेहरे पे. Poker face. I remember your Instagram was full of these bike pictures. You had a buzz cut as well, like really short hair. So, well, that He added had, to the he entire had look. amazing body tea also. Yes, yes. Yes. So, भाई, yeah. या थोड़ा वैसा ही था कॉलेज में. बस कट तो तुम्हारा भी था भाई. Oh, yes, I remember. I think But a buzz you cut is were- every guy's मतलब वो girl canon event होता है ना वैसे male canon event is मतलब it an equivalent of a bang? It's Sure. an equivalent of hair color. no, it's an equivalent of a bang for sure, Yeah. a bang. But the thing with bangs is it almost always like it doesn't work for most women. Yeah, But I think like a lot of guys I've seen pull off the buzz cut. it's very fight clubby. The bus Very cut. fight clubby. Yeah. Very fight clubby. Don't be a space monkey, guys. To all the listeners, don't be a space monkey. What does that mean? I'm sorry. I I'm don't not know what aware. that अरे means. it's a fight club reference here. क्या? What's us? What? Yeah, I've Then seen the Fight member- Club. Why do I not know this? Yeah, yeah. It's a very small snippet, ठीक है. अभी उसमें एक वो आता देखो. There is a guy who is outside the door every day. Then Tyler kicks him out. He comes every day. हाँ, They हाँ. finally take him in. Then he shaves his हाँ. head. फिर हाँ. उसको ऐसे टपली मार करके बोलता डोंट बी ए स्पेस मंकी. Ah, नहीं, उसको okay. टपली मार के बोलता कि now this is a space monkey ready to be shot into space. So he is an expendable to Tyler. Okay. So don't be a space monkey. Be the narrator. Don't even be Tyler. Lot of people tend to be Tyler. Be the narrator, bhai. Yeah, this podcast very organically has seemed to have found its voice. Very organically. हमें कुछ introduction भी कुछ खास ऐसा करना नहीं पड़ा formally, but yes. Yeah. So, coming to the introduction of who we are with today, Dikshant was our senior in college. He was from the accessory design department and we were his immediate juniors. And yeah, that's how we know him from college. But very oddly enough, our friendship was something that blossomed post-college. I mean, even though we connected with each other during college, our friendship really, it's something that became very deep. Post-college, we're chatting like three pals. Absolutely. As you all know, my name is Dikshant Arya. जो काफी लोग मुझे रुद्र नाम से भी जानते थे. ठीक है. मैं हरिनी और क्षितिज का इमीडिएट सीनियर हूँ. अब मैं एक एंटरप्रेन्योर, बिल्ट माय ओन बिजनेस. मैं अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह में हूँ ज्यादातर. इंटीरियर्स वगैरह में एडी में था इंटीरियर्स. या थिंग्स आर गोइंग प्रीटी ग्रेट. I'm currently in Hyderabad. Why simple सा लौंडा. No Londa who calls himself simple is simple. I'm curious, Oh, yeah. is Rudra your nickname like घर से, or is there a Yes. story behind it? It's a nickname from home only, and Okay, okay. yeah, there is a जो story call you behind Rudra. it. Yeah. Okay, what is that? So, Irshad, I Would was you a like Irshad? to tell us? very angry child at home. ठीक है. So it's not Rudra, it's Raudra. ठीक है. Raudra is a Okay. rasa. There are 9 rasas, right? So Raudra Right. is one Mhm. of them. Raudra is anger.
सो मतलब गुस्सा करते थे बचपन में, तो दादी वंस कॉल्ड मी, अरे रुद्र है क्या, ऐसे ऐसे, सो दैट काइंड ऑफ स्टक, सो इट्स समथिंग Mm-hmm. Hmm. लाइक दैट। Gotcha, gotcha. या Okay. So moving ahead, you were an AD, and I think AD in itself काफी broad होता है in terms of what kind of applications you would do with that knowledge, right? Like it was similar to FC in a way that there's so much things that you get to learn that काफी अलग-अलग applications कर कुछ लोग specialization में. I remember I got to know from Harini that your graduation project was in automobile design, right? या And then later you've done a lot of 2D, 3D design as well, and now Automotive. you're doing, yeah, interiors. So let's say if we were to understand you through your designs, what's the first piece that you would like for people to look at, or your proudest work yet? my proudest work is that motorcycle only, because it is something that I have always wanted to do since a child. Mm-hmm. मतलब मेरे बचपन के स्केचबुक्स और उसमें गाड़ियां ही है भाई, और कुछ भी नहीं है। Hmm. सो अभी क्या है कि I am still very passionate about transportation design or automotive design, but I really did not find any path according to that. ठीक है, Mm-hmm. but at that time, there is a lot of pressure involved. अभी क्या होता है कि when you are the elder son, you have to take up responsibility. Even though मेरे parents उतना मेरे पे नहीं डालते हैं, but I feel like taking those things up. Okay. So I Mm-hmm. needed to start earning as soon as possible. ठीक है, अभी क्या है कि I could not be dependent on them for a very long time. I could not do masters as such. मेरे को काफी मन था masters करने का. Even my portfolio got selected into Art Center College of Design, California. But Wow. so भाई अभी मेरे सारे प्रोजेक्ट जो ऑटोमोटिव रिलेटेड ये सब उसके इर्द गिर्द ही हूँ मैं पूरे के पूरे कॉलेज लाइफ में। Mm-hmm. लेकिन उस देर इज टू थिंग्स, मतलब मेरे को ऐसा पहले लगता था कि देर आर टू थिंग्स, या तो पैसा होगा या तो पैशन होगा भाई, बट Mm-hmm. देर इज अ मिडिल वे एज वेल, which I recently found out कि if you plan accordingly, if you plan nicely, you can definitely achieve something, जिसमें तुम कमा भी सकते हो and it is your passion as well. Right. सो अब उसके बाद क्या हुआ, ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट तो देखो मेरा मोटरसाइकिल ही था। मैंने भाई Mm-hmm. बहुत ही जगह इंटर्नशिप, अब Mm-hmm. थोड़ा उतना मैं भाई मेल वेल में नहीं है, मेरे को उतना फॉर्मेलिटीज करने का। सो Mm-hmm. आज ज्यादा सर्च करता तो और कुछ मिल जाता। जो मिला उसमें था अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, दे टुक एन असाइनमेंट एज वेल, तो Mm-hmm. असाइनमेंट में भी उनको अच्छा लगा, सो आई वेंट देयर, आई बिल्ट अ मोटरसाइकिल, उनको एक प्रोटोटाइप बनाना था, सो इट वाज एन ईवी Mm-hmm. एंड Okay. yeah, it was directed towards delivery personnel, and it was a scrambler. अब there are different kinds of motorcycles. Scrambler is one of them. Scrambler क्या रहता कि let's just say scramblers are perfect for Indian roads. Okay, Okay. big suspension travel, mostly the geometry part of it. Okay, Okay. see अभी I am currently riding a scrambler. मेरे पास अभी एक BR 650 है. Okay. Mm-hmm. It's the latest motorcycle from Royal Enfield. So उसमें क्या है कि the tires are huge, okay, and they are wider. The engine is overpowered, and it's an Mm-hmm. upright position motorcycle. तो उसमें क्या होता है कि you stay relaxed in the traffic, okay. Mm-hmm. ज़्यादा suspension travel होने की वजह से potholes वगैरह उतने समझ में नहीं आते. And Hmm. you can even uh, अब रोड का जो डिवाइडर्स, जो छोटे वाले डिवाइडर्स हैं, जो 5 इंच वाले, 6 Mm-hmm. इंच वाले, you can easily Mm-hmm. cross them. Mm-hmm. What exactly do you mean by what's the word that you use? Suspension? It was a phrase. Suspension what? Suspension something. What was that? सस्पेंशन का जो ट्रैवल Huh. What exactly do you mean by that? ट्रैवल मतलब कि कितना चक्का ऊपर नीचे। Okay. Okay, interesting. अब एक और दूसरी मोटरसाइकिल जो है वो है कॉन्टिनेंटल GT 535। Mm-hmm. वो क्या है कि मेरी राम प्यारी हो बेसिकली, ठीक है। Mm-hmm. सो Uh-huh. उसका इट्स अ रेसिंग मोटरसाइकिल, इट्स नॉट अ स्क्रैम्बलर, ओके। में क्लिप ऑन्स भी, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैंडल्स इन मोटरसाइकिल्स, जो एक Mm-hmm. हैंडल बार एक ऐसे रहता है अपराइट पोजीशन में, एंड Mm-hmm. देयर इज अ क्लिप ऑन। क्लिप ऑन क्या रहता है कि वो नीचे रहता है, योर नीचे की रिस्ट इज तरफ। लाइक दिस। स्क्रैम्बलर में योर रिस्ट इज लाइक दिस। Hmm. सो क्लिप ऑन्स क्या है ना, उसको कॉर्नरिंग करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। मतलब you sit on the motorcycle and you are tucked in. When you are Mm-hmm. tucked in the motorcycle, you can lean it easily very well. So the GT that I have, उसको lean करने में काफी easy रहता है। But Mm-hmm. again, उसको ट्रैफिक में लेकर के जाएंगे तो it will be a hassle to ride. Mm-hmm. Your wrist will hurt, back हमेशा झुका हुआ रहेगा तो your back will hurt.
but I did Humpy in my GT 535 only. It was a 600-kilometer ride, 600 up Hot and 600 damn. down. Hot damn. So yeah, ह्यूमन विल के आगे क्या सस्पेंशन, क्या क्लिप ऑन्स वगैरह भाई, मन Inshallah, कर गया तो कर inshallah. गया। Wow, yes. Inshallah, can't disagree. So this actually brings me to a question on your background and your heritage. Growing up, you grew up in Jharkhand and you come from a blacksmithing heritage. So Yeah. I'm curious about what exactly shaped your instinct in terms of, let's say, material, weight and function, and what particularly made you choose design as a career choice. व्हाट आई बिलीव राइट, हम लोग में एक कहावत है, हम लोग लौवंशी है। Mhm. लौवंशी मतलब ब्लैकस्मिथ, लोहा का काम कर। Mhm. हेरिटेज है तो हम लोग विश्वकर्मा कास्ट से आता है। विश्वकर्मा हैड 5 sons. Mhm. लोहार was the eldest, कुम्हार, सोनार, बढ़ई, देन शिल्पकार। लोहार मैं ही हूँ भाई, ब्लैकस्मिथ हो गए। सोनार, सोना का काम, ठीक है। बढ़ई हो गए भाई अपना ये लकड़ी का काम करने वाले। कुम्हार हो गए एंड शिल्पकार हो गए। Mhm. मूर्ति बनाने वाले को क्या रहता है, दे एक्सेल इन एवरी ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज व्हेन यू आर मेकिंग अ मूर्ति यू नीड टू पुट एवरीथिंग। मूर्ति में शस्त्र भी डालना है, में सोना का मुकुट भी डालना है, मूर्ति में मिट्टी का भी काम होगा, मूर्ति में एनाटॉमी भी होगा। सो लोहार में, लौवंशी में ऑल ऑफ दीज विश्वकर्मास, ठीक है, जो भी विश्वकर्मा हो, आप देखोगे क्रिएटिव पेशेंस। Mhm. क्रिएटिव पेशेंस क्या होता है ना कि मेरा एक फ्रेंड भी है, ही इज ऑल्सो लौवंशी विश्वकर्मा। सो अभी क्या है कि व्हेन वी वर्क ऑन समथिंग राइट, सो वी वर्कड ऑन नाइफ्स एज वेल। मतलब मैंने उसके साथ मिल करके, जब मेरे पास फ्री टाइम था तो वी मेड नाइफ्स एंड ऑल। सो इससे अपन बना रहे थे माइल्ड स्टील से। माइल्ड स्टील इज वेरी हार्ड टू बेंड एंड यू नो चेन ड्रिलिंग उसमें काफी हार्ड रहता है। इट्स अ टेम्पर्ड स्टील राइट। Mhm. काफी लोग क्या करते हैं, उसको हाफ वे में गिव अप कर देंगे। बट जो लौवंशी है या फिर जो, इट्स नॉट जस्ट अ कास्ट थिंग एज वेल, इट्स अ ड्राइविंग फोर्स दैट यू नो। जितने भी मैंने देखे हैं लौवंशियों में, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंस विद देयर क्राफ्ट। दे टेक टाइम ऑन इट, दे मेक इट मोर ब्यूटीफुल एंड यू नो उसमें वो कारीगरी डालते हैं। ऑल ऑफ माई वर्कर्स, ऑल ऑफ माई स्टाफ्स जो कि है वहाँ, Mhm. जो मेरे फ्रेंड के भी वर्कर्स एंड स्टाफ्स हैं, दे हैव इमेंस पेशेंस फॉर देयर क्राफ्ट। ओके, उस पे लगा रहेगा, ठीक है। Mhm. इवन आप सोनार को भी देख लोगे तो उस पे लगा रहेगा। एंड वन मोर थिंग दैट हैपेंस, माय फादर। सो अभी क्या है कि हम लोग का ट्रेडिशन रहता, हर साल जो है काली माँ का मंदिर है वहाँ पे, जो अमावस की रात रहती ना दिवाली की, उसमें बलि होता, राइट। Mhm. सो वो तलवार ना, मतलब पुश्तैनी तलवार है वो मंदिर की, और उसको पजाने के लिए आता हम लोग के पास, ठीक है, बिकॉज वी आर लोहार्स बेसिकली राइट। सो माय फादर शार्पन्स देम। अपने पास एक ये है, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग उसको सान बोलते हैं हिंदी में। सान इज अ Mhm. ग्राइंडिंग स्टोन अटैच टू अ मोटर, Mhm. जिसमें वो पचता है। इट शार्पन्स इट, Mhm. मतलब उसको शार्प करना पड़ता है। Mhm. सो तलवार तो हैवी रहता है, 9-10 किलो का भाई तलवार तो रहता ही है। दैट डे माय फादर टॉक्स टू नोबडी, बिकॉज यू नो, मतलब ही सेज कि Oh. तो कुछ एनर्जी आ जाता है, बिकॉज इट्स अ बली तलवार राइट। में एक ही बार बजता है, यू नो उसमें जंग वंग भी उतना नहीं लगता है। एंड अभी क्या है कि दैट मशीन सांज, इट्स वेरी डेंजरस। अब देखो यूएस वगैरह में क्या रहता है कि व्हेन यू आर वर्किंग विद और यू व्हेन यू आर वर्किंग विद समथिंग फोर्जिंग एंड ऑल, यू हैव टू वेयर ग्लव्स एंड ऑल, यू नो प्रॉपर हेड गियर वगैरह वगैरह। अपने Mhm. वर्कशॉप्स में वैसा नहीं होता। अगर मैं Mhm. ला के भी दे दूं, दे वोंट वेयर इट। उनको वो टच फील होना वहां पर, देन दे नो Mhm. कि तुम लोगों ने वो एविएटर देखी हो, लियोनार्डो डिकैप्रियो, एक I'm मूवी। familiar with the film. I'm या familiar. सो उसमें जो जेट बनाता है ना, जेट को ऐसे टच करके देखता है भाई, Hmm. टच करके देखता कितना स्मूथ है, कितना परफेक्शन आ रहा है। सो मैंने Hmm. पापा को देखा है वो चीज करते हुए कि वो बजाते हैं ना, तो ऐसे उसकी धार को ना ऐसे टच करके देखेंगे। उसी से Hmm. उनको समझ में आता कि उसमें कई बार कट भी जाता है उंगली, लेकिन उसी से समझ में आता कि अच्छा ये स्मूथ है कि नहीं है। Right. समझ रहे हो, आजकल तो काफी नए टेक्निक्स है। अगर कोई इस पे मॉडिफिकेशन गराज में जाओगे या फिर रैपिंग गराज में जाओगे, तो वो लाइट की स्ट्रिप रहती है, उससे ऐसा चेक करते सरफेस कितना स्मूथ है। बट दिस इज द ट्रेडिशनल वे। Right. पहले ग्लव्स वगैरह नहीं रहते थे, हाथ अपने आप हार्डन हो जाता है। माय Hmm. फादर्स हैंड इज वेरी हार्ड, यू नो। Calloused. एक, या पूरा हाथ कैलस्ड है समझ लो।
Hmm. इवन these tips, Right. गिटारिस्ट का रहता है देखो टिप्स एकदम पूरा Hmm. कैलिस्टर वैसे ही है पूरा का पूरा, हैमर वैमर भी पड़ जाता है उसमें हाथ में, सो दे डोंट यूज एनी काइंड ऑफ सेफ्टी गियर ओवर देयर। एक और चीज क्या है कि अ, जो पजाया जाता है राइट अभी उसमें पेशेंस चाहिए, Hmm. बिकॉज यू हैव टू डू इट लाइक 100 नो 120 टाइम्स टू गेट दैट एज, Right. फिर उसको बार बार पानी में भी डुबाना ताकि ठंडा हो जाए, क्योंकि वी आर यूजिंग बेयर हैंड्स, लोहा को पजाएंगे Hmm. तो गर्म हो जाता है राइट। सो as a Lohuvanshi, this is our craft basically. We operate with metal mostly. एक और चीज क्या है कि my father never taught me that machine. मेरे Okay, को कभी why? एंगल, he's scared कि चोट चपेटा लगे। It's a very Hmm. scary machine. के आसपास कुछ भी नहीं है कि सेफ्टी फीचर्स की, जैसे बाइक में मडगार्ड कैसे रहता चक्के के ऊपर, उसमें Mm-hmm. वो भी नहीं है, पूरा खुला है। Mm-hmm. अगर हम आगे झुक भी गए तो मेरा दैट इज रोटेटिंग अराउंड 7,000 8,000 आरपीएम पे वो ग्राइंडिंग स्टोन उसके ऊपर रख करके वी हैव टू डू दिस। तो अभी ही नेवर टॉट मी, लेकिन जब हम स्टार्ट किए हम ऐसे ही नॉर्मली द नाइफ दैट आई मेड इट वाज अ परफेक्ट एज, माय फादर वाज वेरी हैप्पी यू नो। Also, he never taught me how to use an angle grinder. You guys know about angle grinders. Mm-hmm. It's the scariest machine ever. 15,000 RPM in your hands. इट्स अ हेवी मोटर। क्या है कि उसका जो ब्लेड रहता है लोहा का, उसको थोड़ा भी एंगल इधर तो ब्लेड टूटेगा, ब्लेड टूटता तो Mm. किधर आता, उसमें कोई गार्ड भी नहीं था, गार्ड का ऑप्शन रहता लेकिन काफी लोग गार्ड नहीं रखता। अपने कॉलेज में गार्ड वाला था, एक गार्ड वाला नहीं था, 2 एंगल ग्राइंडर्स थे। Hmm. कॉलेज वाले तो भाई मेरे को ही बोलते थे एंगल ग्राइंडर, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह रहता था। इट्स अ स्केरी मशीन, तुम अपने हाथ को उतना अगर टूट गया तो फिर खेला तुम तो। काफी लोगों का देखा है हमने, वर्कर्स का भाई पैर कट गया। बाप रे। जो भी लोहे का काम करता है ना, आप लोग देखोगे नोटिस करना, दे विल हैव सम फिंगर्स मिसिंग ऑन देयर हैंड्स। इट्स लाइक अ माफिया थिंग यू नो, they'll have some fingers missing, they'll have a ton of rings in their hands, but yeah. You didn't complete the question though. How exactly or why exactly did you choose design? So choosing design isn't it obvious, क्योंकि देखो अपना जो क्रिएशन स्पिरिट है ना डिजाइन का, Mm-hmm. अभी क्या है कि इनको डिग्री नहीं है ठीक है, बट दे आर डिजाइनर्स, दे आर क्रिएटर्स, दे मेक Of समथिंग course. आउट ऑफ नथिंग, दे फुलफिल अ क्लाइंट्स नीड बेसिकली, ठीक है। Mm-hmm. एक और चीज क्या होता है कि हम लोग गेट ग्रिल वगैरह का भी काम रेस बना, इट शुड लुक मोर एस्थेटिक अकॉर्डिंग टू दैट। Mm-hmm. फिर डंपर्स का काम रहा, डंपर्स में पूरा फैब्रिकेट करना पड़ता है उसका टैंक, Hmm. इवन ये जो पेट्रोल की गाड़ी रहती है वो पूरा टैंक फैब्रिकेटेड रहता है। Hmm. टाटा से इफ यू बाई अ बस यू विल जस्ट गेट अ बस विदाउट द होल बॉडी, ओके, यू हैव टू फैब्रिकेट द होल बॉडी। सो Hmm. डिजाइन तो इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व है, चाहे कोई सा भी हो, ऑटोमोटिव हो, आर्किटेक्चरल हो, इवन एक्सेसरीज। Hmm. सो अभी क्या है कि क्रिएशन स्पिरिट तो बचपन से ही था, एंड यू नो आई नेवर न्यू दैट डिजाइन एग्जिस्टेड, पता ही नहीं था कि इन सब चीजों की भी पढ़ाई होती। ऑल वी Hmm. न्यू, हम लोग को बचपन से बस 2 ही चीज पता, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या फिर धंधा। तो भाई धंधा. Mm. अभी क्लास 11th वगैरह में आई हैड नोवेयर टू गो, माय फादर टोल्ड मी कि इंजीनियरिंग करेगा क्या, फिर मैं उनको बोला, ही गेव मी, मतलब जेई की फीस होती है 800 रुपए की, he gave me after 12th, you know, I scored good marks. So मैं बोला पापा जिस गली में जाना नहीं उस गली का पता पूछ के क्या फायदा, क्या करेंगे एग्जाम देख। never wanted to do engineering यार, because it's very saturated and you know it's not a creative field. मैं अगर करता भी तो मैकेनिकल करता, बट फिर मेरा एक फ्रेंड था, मतलब ही थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ज्यादा तेज रहा है बचपन से, तो वो बोला Mm-hmm. कि भाई हमको स्केचिंग वर्ड भी नहीं, ड्राइंग बोलते थे हम लोग। तो Hmm. वो बोला कि अबे ड्राइंग का भी पढ़ाई होता है। हम बोले ड्राइंग का कहाँ से पढ़ाई होता है, बोला नहीं होता है रे ऐसा कुछ, निफ्ट बोल करके, फिर एक Hmm. एनआईटी भी कॉलेज है, तुम एक बार ट्राई करके। Hmm. तो मैं घर आया, पापा को बोला कि अरे निफ्ट ऐसा है, वो Hmm. सर्च किया तो निफ्ट हैदराबाद है सबसे पहले, ठीक है। देन ही वाज लाइक कि ठीक है चल जाओ कोचिंग तैयारी कर लो। फिर कोचिंग आया तो फिर इनिशियली हैदराबाद वाज लाइक न्यूयॉर्क टू मी, Hmm. बट भाई नहीं, मतलब इंडिया क्या है ना 3 लेयर्स में डिवाइडेड, यू नो, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो। नहीं, I think it rounds. Sorry.
it comes in a full circles. circle. It kind of, in some sense, answers the next question that I was going to ask you anyway, which was about your journey from Gaon to, let's say, a design studio or an urban space, and how that has impacted your evolution. गाँव का लौंडा हूँ भाई, ये तो तुम बहुत बोलते थे कॉलेज में. I mean, it's still very central to your identity. But yes, you are going to speak more about your evolution in that direction and how that trajectory came through. If you guys ever come to लोहरदगा, right? Mm-hmm. लोहरदगा का ब्यूटी काफी डिस्गाइज्ड है, ज्यादा लोग जानते नहीं उसके बारे में. इट्स अ ब्यूटीफुल Mhm. प्लेस. Mm-hmm. At the same time, it's a very wild place over there. ठीक है. There are creatives from that town, but Mm-hmm. the wilder side is much more active. Mm-hmm. मतलब भाई के सामने इतनी अंग्रेजी बोल दो ना भाई, भाई मौज हो जाएगी वहां पर. तो भाई, तो देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है ना, इंडिया 3 स्टेजेस में डिवाइडेड मेरे अकॉर्डिंग. ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा व्यू है. Mm-hmm. पहला है कि जो अपना, इसमें 3 टीयर में कर लेते हैं, जो अपना भाई थर्ड टीयर होता है, ठीक है, जस्ट लाइक लोहरदगा, ठीक है. Mm-hmm. भी रिलायंस का थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, स्मार्ट बाजार वगैरह वगैरह. पहले कुछ भी नहीं था. Mm-hmm. अगर मोनोपोली के भी सेंस में देखें तो लोहरदगा में अभी जो एंसेस्ट्रल मोनोपोली है, जैसे पुरानी दुकान है, वो सब ज्यादा Mhm. चलती है. वहाँ स्विगी जोमेटो नहीं है. एंड इफ यू गो अराउंड 5 or 6 kilometers into the देहात पार्ट ऑफ इट, in some places electricity is also not there. Mm-hmm. जो ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, they don't even know what their only monopoly is getting the wood from the forest and selling it to the and they travel by foot. Right. Mm-hmm. They load their bags with around 70-80 kilo of wood every day. They come to like बीच में ब्रेक्स लेती हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ, they sell it and then they go back home. 70, 80. Yes, Whoa, that's a crazy number. that's a crazy number and it's crazy That's a job. crazy उनका number. back वगैरह सब आर्च हो जाता है over the time, over the period of time. It's not healthy at all. Mm. वो ट्राइब्स में भी जो थोड़े जो थोड़े कमाए वाले फैमिलीज है, जिनके पास थोड़ा पैसा है, दे कैन अफोर्ड अ साइकिल. उन फैमिलीज में अगर कोई सेंसिबल मेल है, वो मेल आता है उनके साथ. और ज्यादा पैसा है किसी के पास, वो तो फिर गाड़ी भी चलती है, बोलेरोज that pick up trucks. And trust me, the roads are amazing over there. ठीक है. I have been to Mumbai. I know how the roads are. Come to Lohardaga, you will see where your investment is going, where your tax is going. So the roads are amazing, surprisingly. Earlier it was roads थे ही नहीं, क्योंकि माओविज्म ज्यादा था वहाँ. माओविस्ट लोग ज्यादा थे. ठीक है. They never wanted investment over there. Right. Investment रहेगा तो they can't be the Robin Hoods over there. Mm-hmm. Maoists tend to be, they want to be Robin Hoods, but let's be honest, they are not. So अभी क्या है कि पॉलिटिकल भी जाएंगे, लेकिन पॉइंट वही है कि ये जो पूरा Concham. कुंचम Little. अभी देखो क्या है हाँ. कि ये पहला ये थर्ड टीयर हो, ठीक है, Third, हाँ. जहाँ पर थोड़ा कैपिटलिज्म है. मोनोपोली वही पुरानी वाली चल रही है, एंसेस्टर. हम अपना भी जो दुकान है वो भाई 25 साल से ऊपर का है. ठीक, उससे पहले पापा के नाना चलाते थे. Mm-hmm. समझ लो कि अराउंड 80 इयर्स जैसा का है वो. अभी और चीज क्या है कि टीयर 2 पे, टीयर 2 मेरे हिसाब से रांची जैसी सिटी, रांची में जहाँ पर Mm-hmm. धोनी का जो घर है बेसिकली. तो रांची इज इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम ताज रिसेंटली अभी, ठीक है. 50 फ्लोर्स की बिल्डिंग एक बन रही है वहां पर, अभी तक नहीं है, ठीक है. शिटियर रोड्स, ठीक है, एंड लॉट ऑफ ट्रैफिक, ठीक है. Mm-hmm. आईटी कंपनी उतने नहीं. सरकारी नौकरियां, Mm-hmm. दैट्स अ टीयर 2 सिटी, ठीक है, वेयर यू कैन फाइंड फूड डिलीवरी एप्स. मोनोपोली थोड़ी केएफसी वगैरह वालों की है. लोहरदगा जैसा सिर्फ समोसे वालों की नहीं है. तो that's like a tier 2 city. It's a good city. Park you can go to, मतलब थोड़ा छोटा मोटा अम्यूजमेंट पार्क वगैरह है, अच्छे रिजॉर्ट्स वगैरह. अब नाउ यू कम टू द टीयर 1 सिटी. काफी लोग बोलते हैं हैदराबाद को भी टीयर 2, लेकिन भाई फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट आओ, देखो कैसा है, ऐसा लगेगा सीओ आ गए. तो हो. Wow, okay.
my first interaction with the tier 1 city was when I went to Delhi में मैंने DLF देखा Mm-hmm. भाई साहब that is the IT boom that we are talking about. Mm-hmm. सो वो था एक टीयर 1 सिटी, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। एंड वो अभी मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में देखता हूँ, या फिर माइंड स्पेस Mm-hmm. का जो इलाका है हैदराबाद का, वहां पर मैं देखता हूँ इट्स Mm-hmm. वेरी टीयर 1, मतलब it's like everything you want from an IT park, basically. You get everything. IT investment, real estate investment, flat start हो रहा है, Mm-hmm. 1 करोड़ से नीचे को कुछ है ही नहीं। Why I feel Bangalore is saturated is बैंगलोर क्या है कि एक लिमिट, इट्स उसका एक बॉर्डर है, वो Mm-hmm. बॉर्डर पूरे टैप हो चुके। बिहार में पटना के साथ यही सीन है, बॉर्डर टैप हो चुके हैं। रांची में टैप नहीं हुआ, रांची का कुछ ये नहीं, रांची में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इसलिए हो ही रहा है। ताज का इन्वेस्टमेंट अभी रिसेंटली आया है, ताज का जनवरी फरवरी में ही इन्वेस्टमेंट आया, एक होटल वो लोग बना रहे हैं वहां पे हैदराबाद के साथ। लेकिन एक प्रॉब्लम, इट्स एन एवर एक्सपैंडिंग सिटी, बिकॉज Mm-hmm. दिस वाज अ जागीर बिफोर। Mm-hmm. हैदराबाद में क्या है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है पटानचेरू, ठीक, वो पटानचेरू Mm-hmm. भी हैदराबाद में ही आता। 40 किलोमीटर भाई, Mm-hmm. 100 किलोमीटर दूर है महबूब नगर, उसको भी लोग Mm-hmm. हैदराबाद ही कंसिडर करता है। Hmm. सो Okay. समझ लो, यहाँ से 100 किलोमीटर तक का या फिर 40 किलोमीटर तक का जो, उस पे भी देर इज अ पटानचेरू के बीच में कोल्लूर बोल करके एक जगह, कोल्लूर में इसका इन्वेस्टमेंट है विलास का, बड़े विलास बन रहे हैं Hmm. भाई वहां पर, पटानचेरू में विलास बन रहे हैं। Hmm. तो वो डेवलप होगा, उसके आसपास मॉल्स बनेंगे, उसके आसपास आईटी का आएगा, जीएआर का इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है। Hmm. सो भाई इट्स एन एवर एक्सपैंडिंग सिटी। ये जागीर का कॉन्सेप्ट क्या है? जागीर देखो, जागीर क्या होती है ना, जागीर एक टाइप से जायदाद, जायदाद जागीर जो होती है ना बेसिकली, ठीक है। ओके सो निजाम, हैदराबाद वाज वंस ओन्ड बाय निजाम। हु वाज निजाम बेसिकली? निजाम क्या होता है, मुनीम होता है। मुनीम मालूम, मुनीम मतलब अकाउंटेंट्स बेसिकली। Mm-hmm. ओके सो अभी क्या था कि सुल्तान हिंद जब ब्रिटिश सरेंडर करने लग गया, सब कुछ करने लग गया, और मराठा एम्पायर से भी जब प्रेशर था बहुत ज्यादा, तो निजाम को ये एज अ जागीर दिया गया था कि इसकी देख। ओके सो निजाम इसका देख रेख कर रहा था। डेक्कन Mm-hmm. चैलेंजर्स को एक टीम थी आईपीएल की पहले, अभी वो Mm-hmm. सनराइजर्स हैदराबाद है। Mm-hmm. दक्खन का जो प्लेटू है ना, Mm-hmm. दक्खन, यहाँ की लैंग्वेज भी अलग थी, यहाँ पर कॉइन्स भी अलग थे, यहाँ पर भाई भाषा अलग है, फूड अलग है, यू नो। सो दिस इज दक्खन बेसिकली, दखनी बोलते हैं, राइट। ये जो लाइन में सिटीज है ना, जैसे नागपुर हो गया, हैदराबाद हो गया, दीज हैज ऑलवेज बीन वेरी सेफ स्पेसेस। क्या है कि Mm-hmm. हैदराबाद थोड़ा पहाड़ी इलाका भी है, इन्वेट करना मुश्किल था, ठीक है। इट वाज अ चिल प्लेस फॉर एवरीवन, इवन द मुगल्स एंड एवरीवन, ठीक है। इधर पे मोस्टली ट्रेजरी भी रखी जाती थी, ठीक है। गोलकोंडा फोर्ट है यहाँ पर, गोलकोंडा में से हैदराबाद में। Mm-hmm. सो कोहिनूर जो हीरा है गोलकोंडा से ही निकला हुआ है, कोहिनूर गोलकोंडा का होता है। लिटरली हैदराबाद काफी रिच रहा है शुरू से, कि जो जगह में ज्यादा शांति, वो ज्यादा ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं, आर्ट कल्चर क्राफ्ट वगैरह वगैरह। दिल्ली का केस थोड़ा डिफरेंट है, दिल्ली का कल्चर भी बहुत ये है, लेकिन दिल्ली क्या है कि हमेशा इन्वेड होते रही, अनईजी रहे। Mm-hmm. If I put it in a very architectural terms, Delhi is very brutalism architecture, ठीक है, and Mm-hmm. Hyderabad is very French Rococo style. ओके Mm-hmm. फ्रेंच रोकोको, रेनेसांस, अननेसेसरी डिजाइन स्टार, नेसेसरी मतलब रिच का फूड भी Mm-hmm. इधर का जो है, दिल्ली फूड इज वेरी तंदूरी, जस्ट मैरिनेटेड एंड उसको भून दिए। Mm-hmm. अभी यहाँ क्या है कि मंडी मिलती है, और मंडी क्या है कि बड़ी थाली रहती, उसमें फ्लेवर्ड राइस रहता, काफी सारे ड्राई फ्रूट्स, फिर मैरिनेटेड चिकन। Yeah, I desperately चार want to पांच Swiggy something right now. तो 4-5 लोग बैठ के खाते, इट्स वेरी आराम से खाने वाला फूड। दिल्ली इज लाइक क्विक क्विक, मतलब वॉरियर वाला फूड, तुम समझ लो। Hmm. राइट Hmm. So it is something like that. Hyderabad has always been a very relaxed, very sukoon place, ठीक है। One thing that you learn from all these experiences, tier 3 to tier 2 to tier 1, is to always stay humble, ठीक है। क्योंकि लोहरदगा में रहो, शेर जैसा रहो, सब कुछ अपना ही है, पापा के कॉन्टैक्ट से। रांची जाओ, कुछ कॉन्टैक्ट नहीं, हम्बल हो जाओ, सबके सामने भैया भैया, ठीक है, सर सर,
हाँ, फिर रांची से जब रांची में कॉन्टैक्ट्स बन गए, हैदराबाद आओ, यहाँ तो दिमाग ही फट गया भाई इतना बड़ा सिटी देखकर। फिर से ओके सर, सॉरी सर। सम पीपल इवन टोल्ड मी व्हाई यू कॉल अस सर, चिल रहो। फिर हैदराबाद से मुंबई Hmm. फिर मुंबई जा करके अगेन मतलब थोड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। काफी काफी मैंने मतलब लाइफ के पॉइंट्स में काफी लोगों ने मुझे लोगों ने नहीं मतलब मैंने खुद को हम्बल करना सीखा है बेसिकली, बिकॉज Hmm. Hmm. दैट्स हाउ यू लर्न। Mm-hmm. एंथनी बोर्डेन का एक काफी अच्छा का मतलब उसका एक फोटो है बैकग्राउंड में लिखा हुआ, बी ए ट्रैवलर नॉट अ टूरिस्ट। ठीक है, Tourist. या सो इट इज समथिंग लाइक दैट। इफ यू हैव एन एटीट्यूड यू कांट लर्न एनीथिंग एनीवेयर। Mm. क्योंकि भाई तुम थोड़ा चुप से अगर सुनोगे कि क्या हो रहा है आसपास, यू विल लर्न अ लॉट Hmm. अबाउट द सिटी दैट यू आर इन, राइट। Hmm. मुंबई Hmm. में Hmm. भी मुंबई बस मैं थोड़ा मुंबई का ठीक है, मेरे को मुंबई ज्यादा पसंद। मुंबई मुंबई इज द मोस्ट हम्बलिंग सिटी फॉर एनी इंडियन। जिसको भी लगता है कि हाँ भाई मैं बहुत तेज हूँ, मैं बहुत पहुंचा हुआ हूँ, गो टू मुंबई भाई, यू विल सी मर्सिडीज वाला भी अपनी मर्सिडीज पार्क करके लोकल में चढ़ता है। True. रास्ते हो तो चलाएगा वो मर्सिडीज, Yeah, है ना? it's I want to circle back the conversation a little bit towards your design journey again. You said ki, Hyderabad was New York for you, right? And you've lived in Hyderabad and a lot of other major cities, like as you were saying, because you've been there, lived there. So in your design journey, was it a city mentor or a design studio or a particular project that kind of gave you that clarity? And as you've lived in a as well, and you've also lived in a big city, so was that shift also kind of instrumental in this whole process for you? And was there a point wherein you had a particular idea about this move to the big city, and was there an illusion of sorts, and did that break a little, or did you experience something completely different? So it's like a mix of those things questions, but like the हाँ core of it is again, experiencing all these things differently together, working on so many different projects. I checked out your LinkedIn also. You seem to have worked with a lot of different people. So, what was that turning point for you that you more clarity into your design देखो, journey? in a very small town, right? In a very small town, you learn how to steal opportunities. ठीक है, Hmm, a hmm, hmm, lot of my friends who are still stuck there, Mm-hmm. किसी ना किसी रीजन से, if you bring them to these tier 1 cities, hmm, भाई वो करोड़पति बन जाएंगे, बिकॉज दे हैव द ड्राइविंग फोर्स इन देम। उनको वहां पर वो hmm, चीज hmm, मिल नहीं पाता है, ठीक है। यहाँ पर उनको वो अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, बट अगेन उनको अपना कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। हम भी अपना कंफर्ट जोन से पूरा तरीके से नहीं निकल पाए, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। Mm-hmm. अभी क्या है कि डिजाइन जर्नी जो है, ऐसा जैसे हम बोले कि हमको तालीम जो मिली, घर वालों ने बहुत अच्छी तालीम दी। hmm, hmm, दे दे गेव मी अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, बस इंटरनेट वगैरह सब कुछ था मेरे पास। एक पीसी रहा भाई बचपन से, यूज्ड टू ब्राउज यूट्यूब एंड एवरीथिंग। तो उससे क्या हुआ ना कि थोड़ा दिमाग खुला। माय hmm, hmm, पेरेंट्स hmm, ऑलवेज ऑप्शंस, बचपन में मैंने भाई कुछ नागपुरिया वगैरह में एक्ट वैक्ट भी, दे ऑलवेज वांटेड मी टू ग्रो, बिकॉज मेरे पापा को हमेशा मन था भाई बाहर निकलने का, ठीक है। एंड थोड़ा लाइफ में और कुछ करने का, ठीक है। hmm, hmm, सो पेरेंट्स से थोड़ा, पेरेंट्स अच्छे थे, दैट इज वेयर आई एम वेरी लकी। hmm, hmm, आई हैव दीज अमेजिंग पेरेंट्स जो कि दे वर फाइन विथ मी डूइंग एनीथिंग। दे जस्ट गिव मी अ फ्री हैंड, तेरे को जो मन है वो कर, ठीक है। इवन निफ्ट के भी बारे में दे डिड नॉट क्वेश्चन एनीथिंग। दे बोले तुम, वो बोले तुमको करने का मन है तो कर ले, ठीक है hmm, भाई। सो भाई दैट इज समथिंग टू बी मतलब पता नहीं मैं उस लेवल का कभी हो पाऊंगा या नहीं, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू दैट। एंड अभी देखो एक और चीज के अपॉर्चुनिटीज तुम स्टील करना, एंड व्हेन यू गो टू द हायर सिटी तो कल्चर शॉक लगता है। डिजाइन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं टूल्स। जैसे एक सामुराई का कटाना रहता है, वैसे ही एक डिजाइनर का स्टेडलर रहता है। तो भाई hmm. अभी क्या है कि जब मैं कोचिंग यहाँ पर आया तो एक मेरे को बहुत अच्छे मेंटोर मिले, आदित्य अत्रेया नाम से। तो मैट स्कूल, मनोरमा आर्ट एंड डिजाइन स्कूल पर हैदराबाद में, ठीक है, डिजाइन की कोचिंग। सो मैं तो भाई गाँव का लड़का, अपने लिए कैमलिन की पेंसिल ले ली, नटराज या कैमलिन, नटराज में एचबी उस समय नहीं आता था, एचबी के आगे और कुछ भी नहीं आता था। अपन कैमलिन का एक अच्छा स्केचिंग, 5-6 पेंसिल्स थे। और मस्त मैं पहले दिन क्लास के बैठ छोटी वाली स्केच बुक लेकर के और वो सेट ले, इरेजर लेके, शार्पनर लेकर के
Hmm. He told me to draw something. मैंने काफी अच्छा बना. He liked it. Then he moved on to my pencils. He was Okay. like, "What is this? Have some standards. You are going to be a designer." So Okay. I was like, और क्या standard होता है? हाँ. ये तो टॉप टियर है भाई. स्कूल में अगर मैं लेके जाता तो ये तो चोरी हो जाते हैं 8वें पीरियड तक. एक भी नहीं True. मिलता. और क्या स्टैंडर्ड होता है? एक पेंसिल 4-5 रुपए की. नटराज की एक पेंसिल 1 रुपए की आती या फिर 2 रुपए की. सो देयर वाज अ सीनियर ऑल्सो जो कि शरद बोल ही हेल्प मी. वो बोले कि अरे ये नहीं चलता, तुमको चलो तुमको खरीदवाते हैं. तो हिमालय बुक स्टोर है हैदराबाद में, Hmm. सो उधर में गया. फिर वो बोले कि ये ब्लू वाली पेंसिल. सभी को देखा मैं, सभी ब्लू पेंसिल ही यूज. अब उस टाइम मेरे पे उतने पैसे थे, 700-800 रुपए ही थे. मैं भाई ले लिया 5-6 पेंसिल. ठीक है, मजे से. एच भी लेंगे, 6 भी ले लेंगे, सब ले लेंगे. एंड एट दैट क्लास, उसी क्लास में वो बोले थे शार्पनर से शार्प नहीं करना, ब्लेड से शार्प करना. अपने हिसाब से अपना पेंसिल को बना. सो एक ब्लेड भी लिया, अच्छा वाला, अच्छा दिखने वाला. इरेजर्स बोले इरेजर यूज नहीं करना, नीडेड इरेजर यूज, वो भी ले लिया. बिलिंग काउंटर पे आया, 1600 रुपए का बिल हुआ. फिर मैं चेक किया बिल. ठीक है, बोले 70 रुपया एक पेंसिल का. बाप रे बाप, 70 रुपया एक पेंसिल. अभी भी इवन नाउ अगर हम, मतलब मेरा जो किट है वो लेकर के मैं घर घर जाता हूँ. ठीक है, मेरे फ्रेंड्स कभी देखते हैं, पेंसिल देखते हैं कि अरे डीजे कौन पेंसिल है. अगर मैं उन्हें बोलता हूँ 70 रुपए की पेंसिल है, तो फिर उनका दिमाग फिर जाता है भाई, पेन का ही नहीं ले लिया. सो सो भाई, ऐसा कल्चर शॉक तो मिला था मेरे को फर्स्ट डे. देन आई न्यू कि अरे दिस इज ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हॉबी है. ठीक है, बट मैंने भाई स्टेडलर्स तो संभाल करके रखे. आई नेवर, मतलब जो खत्म भी हो गए ना, अभी भी हो है भाई वो किट में, पता नहीं क्यों. इतने इतने से है भाई, लेकिन है. अभी लिविंग लाइक ए डिजाइनर, ये सब यू नो, क्रिएटिव पर्सन वगैरह वगैरह, टूल्स अपने से शार्पन करो अपने हिसाब से, ये सब सीखने को मिला. वो सब मैंने सीखा. तो कल्चर शॉक मेरे को हैदराबाद में ही मिला. एंड ही वॉज अ ग्रेट मेंटर. वो क्या है कि मेरा ड्राइंग को स्केचिंग में कन्वर्ट करे. पहला एक हफ्ता ही Okay. वॉज लाइक कि ओनली लाइंस, स्ट्रेट लाइंस. हम 3 घंटे का क्लास रहता था, डेली आते थे, सिर्फ लाइन खींचते थे. ठीक है. Hmm. सो वो ना मेरा ड्राइंग को स्केचिंग में बना. ही वॉज लाइक कि एक हफ्ता तक सिर्फ लाइन खींचा है भाई पेपर, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर. Hmm. अब वो लाइन खींचने के बाद क्या होता है, मेरे को लगा कि अब कुछ सिखाएंगे. ठीक है. हाँ. नाउ ही इज लाइक कि ड्रॉ परफेक्ट सर्कल विदाउट एनी कंपास. हम बोले ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, मैं कैसे एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करूं. फिर वो करके दिखाया. हाँ. इट वाज लाइक टॉप गन. Ah. वो करके दिखाया. आई वाज लाइक कि आई ये हो सकता है. सर्कल बन गया. चेक किए, चेक डेट, इट वाज अ परफेक्ट सर्कल, 5 Wow. सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का. सो अब वो बोले कि यार सिर्फ सर्कल्स, सिर्फ सर्कल्स, सिर्फ सर्कल्स. मतलब मेरा अगर उस समय का स्केचबुक देखोगे तो लगेगा कि कोई मेनियाक का स्केचबुक है. सिर्फ सर्कल है, सिर्फ लाइंस है. सो भाई, अब वो सर्कल्स हो गए एक हफ्ता में. वो भी हो गया, सर्कल पूरा परफेक्ट ड्रॉ होने लगा. देन ही केम टू ओवल्स. अब ओवल्स ड्रॉ करो अलग अलग एंगल से, पतला, वाइड 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 सर्कल, देन ऐसे. उसके बाद फिर डायगोनल लाइंस ड्रॉ करो, उसमें सर्कल्स बनाओ. वो ना काफी मेहनत करा. ठीक है, स्केचिंग के मामले में बहुत ज्यादा मेहनत. Hmm. उसके Sorry to बाद cut you off, but this reminds me of that scene from Karate Kid where he's like, take your jacket off, put it on the floor, हाँ भाई, now हाँ pick it भाई, up, now put your jacket back on, now hang it. Like, I हाँ. mean, not exactly in that order, but it reminds me of that because such exercises initially seem really futile. You are like, क्या यार डिजाइन सीख, क्या यार स्केचिंग सीखना है, लाइन मरवा रहे हैं यहाँ पे. एंड ओनली आफ्टर यू गो थ्रू दैट एंटायर एक्सरसाइज, ओनली आफ्टर यू रियलाइज दैट नो, यू डोंट ड्रॉ फ्रॉम योर रिस्ट, you draw from your arm. होल हैंड Like, भाई. basically you let your whole hand guide you, right? लोग वरना मतलब initially when we start out, we start out like this, and Yeah. it is so restrictive in terms of range of motion. Yeah. And when you start using your whole body to sketch, when you start using your whole hand, and when you understand that the simple act of drawing a line has so much philosophy to it. Then he, after all those things ना, he taught me drifting. ठीक है, drifting with the pencil. ड्रिफ्टिंग कहीं थिकर लाइंस होने, कहीं थिन लाइंस होने. ठीक है, उससे एक अलग डायमेंशन आता है स्केच को. सो
दिस गाय अमेजिंग टीचर, ठीक है, अमेजिंग मेंटोर, इसको Hmm. पढ़ाने आता था। कई टीचर्स को Hmm. इंडिया में क्या होता है, दे आर ब्रिलियंट बट उनको पढ़ाने नहीं आता। That's a completely different skill True, set true, true, true. to be able to teach. तो अपन एक स्टेशन में गए, ठीक है, ही सेड कि एक पोज के लिए यू विल हैव 30 सेकंड्स, स्केच व्हाट यू कैन, ठीक है। तो हम लोग कैसे स्केचिंग करना सीखे, पहले ह्यूमन को पहले स्केलेटन बनाना उसका, उसके ऊपर पूरा लाइंस एंड डिटेल्स ऐड करना। Then he taught कि without the skeleton how will you add all the details, and he really taught us framing, तो scene drawing होता है, right? Mm-hmm. उसकी framing he taught us through movies and comic books. So movies में ऐसे 2001 स्पेस ओडेसी वगैरह वो सब दिखाते थे, ठीक है, कि देखो रूल ऑफ थर्ड्स ऐसा होता है, फिर देखो ये क्या बोलते हैं, कलर थ्योरी क्या होती है, शिंडलर्स लिस्ट वो बोले थे देखने के लिए, उसमें कॉन्ट्रास्ट समझ हो गया, ठीक है। That is Schindler's actually List really से भाई, good teacher, yaar. Seriously, like the हाँ experience यार, is it's so so good. rare. या ही इज That's एन actually अमेजिंग गाय rare. भाई। आई बिलीव उस समय पद्मावत का ट्रेलर आया था, ठीक है, और Hmm. हम लोग बैठ करके उसको एनालाइज किए थे, सिमेट्री किधर है, वी रोट डाउन पॉइंटर्स। ही आल्सो टॉट वन मोर ट्रिक, ठीक है, व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग अ सीन, राइट, सीन ड्राइंग कर रहे हैं या फिर कोई भी स्टोरी बोर्ड कर रहे हैं, कोई पोस्टर बना रहे हैं, ठीक है, ही टॉट अस टू ऐड सम इम्परफेक्शंस टू इट। जैसे अभी मैं एक सीन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, वो सीन को कोई अलग एंगल से लो, सही वाज लाइक कि थोड़ा अलग एंगल से लो। वो बोलते थे कि कभी भी अपन मूवी का डायनामिक देखे, कैसा रहता है ना, थोड़ा सा ऐसे, जैसे कि ये लाइन है ना कैमरे की, जो ये अपना फ्रेम है, फ्रेम को थोड़ा ऐसे कर। Okay. So, अपन कभी ऐसे सीधा होके कोई चीज अपन क्या ऐसे देखते हैं या ऐसे देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, सो द सीन लुक्स मोर नेचुरल। मैंने अपने एनआईटी के एग्जाम में एक सीन ड्राइंग करी थी, उसमें मैंने उसको यूज करा था टिल्ट करके, यू नो। सो अभी क्या है कि ये सारी टेक्निक्स ना सारी चीजों में, मूवीज, वेस एंडरसन की भी अगर फ्रेम्स कहीं ना कुछ सिमेट्रिकल इम्परफेक्शंस रहते हैं, जिसके मतलब से वो थोड़ा नेचुरल भी लगता है, लेकिन साथ साथ में थोड़ा ये भी लगता, यू नो, फ्रेम्ड लगता। इवन अजीत रे का सबसे इजीएस्ट ऑफ वर्क्स अगर हम लोग देखें, सबसे रेडिली अवेलेबल वर्क्स, टू बोल करके एक उनका ये है शॉर्ट फिल्म, ठीक है। सो उसमें भी जो फ्रेमिंग देखेंगे ना, इट्स सिमेट्री फॉर बोथ द वर्ल्ड्स, ठीक है, इट्स अ वेरी फिलोसॉफिकल सिमेट्री, लेकिन फ्रेमिंग उस हिसाब से एकदम नहीं की गई है। फ्रेमिंग में एक बच्चा टॉप पे है, दूसरा बच्चा एकदम नीचे, I think I know what you're So, talking about. Yeah. या उस हिसाब से अब ये सारी चीजें को सिनेमा देखना जो सिखाया अजित सर नहीं सिखाया, मतलब मेरे को पर्सनली देखना उन्होंने सिखाया कि कैसे देखा जाता है, उसके हिसाब से मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ सिनेमा देखने। फिर मैंने उनको गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा है। Wow. And you were like, भैया घर एक होममेड फिल्म है, एक मैंने और मेरे दोस्तों ने बनाई है एक फिल्म, देखोगे आप, गैंग्स ऑफ वासेपुर है नाम फिल्म का, देख लो। इवन इन गैंग्स ऑफ वासेपुर ना, यू विल सी इट्स वेरी ऑर्गेनिक, भाई वेरी, एंड फॉर अ गाय लाइक मी जो कि वैसे एरिया से बिलोंग करता है, वासेपुर अपने से ज्यादा दूर नहीं है। वासेपुर इज वेरी नियर टू अस, इट्स अ बस टू वासेपुर मेरे घर तरफ से, ठीक है। सो इट्स अ बस राइड अवे वैसा है, ठीक है, ओवरनाइट जर्नी भी नहीं लगेगा आई गेस। सो अभी क्या है कि गलियां वैसी ही हैं पूरी की पूरी, ठीक है। सो शॉर्ट्स जो है ना काफी ऑर्गेनिक है। अब ये स्टोरी टेलिंग काफी कंप्लीटली डिफरेंट हुई। गैंग्स ऑफ वासेपुर इज मोर लाइक ए डॉक्यूमेंट्री अगर बोली जाए तो, टेक्निकली इट्स सिनेमा बट इट इज शॉट इन अ डॉक्यूमेंट्री मैनर, ठीक है, देयर इज अ नरेटर ओवर देयर, ठीक है। और क्या है कि कुछ सीन्स लगता है कि हाँ दिस इज फुल्ली फैब्रिकेटेड, लेकिन कुछ सीन्स इतने नेचुरल और इतने ऑर्गेनिक है। सो इट्स मोर ऑफ ए रियलिस्टिक डॉक्यूमेंट्री। यू डोंट फॉलो अ कैरेक्टर ओवर देयर, यू फॉलो द स्टोरी। फॉरेस्ट गंप कैसा है, फॉरेस्ट गंप भी वैसे ही है, you follow the character but you follow the story very much. I think it's more character oriented. Forrest Gump थोड़ा ज्यादा character oriented है. Gangs of Wasseypur is, I mean, not as, it's more narrative. थोड़ा और John Wick is very, हाँ John Wick easy example, character oriented. I mean, for sake, name is called, movie's name again, Forrest Gump, guy's name is Forrest Gump. John Wick, guy's name is John Wick. So movies पे देखो, मूवीज से भी बहुत कुछ सीखने में मिला। ह्यूमन एनाटॉमी तो पूरी की पूरी मैंने भाई कॉमिक्स से ही सीखी है।
Hmm. लाइव स्केचिंग से भी सीखी है, आदित्य सर ने भी काफी टेक्निक्स बताया, बट कॉमिक्स से जो है ना, Mm-hmm. यू गेट द स्टैंसेस, ठीक है, कि कैसे खड़ा होता है, कैसे डायनामिक खड़ा होता है. Hmm. As a designer, what I believe, you are not doing, you are not making art, but you are kind of उसको थोड़ा over exaggerated way. Huh, for sure. Because for sure. Like when you said comic specifically, it reminded me of how even like when I was younger, I used to for some reason like I was really inspired by comic drawing. And there was one book that was very specific to drawing the way they draw in comics. I don't remember the exact name of the book, but I got that when I was 15. Because क्या होता है वो exaggeration में मतलब वो जो exact pose है वो कन्वे होता है दैट यूर ड्राइंग एंड इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड posture एंड इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हाउ द बॉडी लुक्स एंड हाउ द बॉडी बिहेव्स मच बेटर. हम्म. हम्म. अभी क्या है कि पोस्चर के बारे में ना, पोस्चर अपने को ये भी बहुत अच्छा सिखा है. नितिन सर थे राइट कॉलेज, यस वो हम यस. लोग को आर्ट हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, ठीक है. हम्म. उसमें एक टॉपिक था, इट्स स्टैंड्स इन द डांस फॉर्म, मे बी भरतनाट्यम. सो देयर आर आई थ्री थिंक इट्स इज लाइंस. इट अभंगा. यस, समथिंग लाइक दैट. मतलब कि एक जो स्टिफ स्टैंस है, मतलब टी पोज होता है ना गेम में, उसको भंग करना, ठीक है, ब्यूटी आता. अभी है 3 लाइन्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है. मतलब जब हम लोग कोई बॉडी देखते हैं, व्हेन वी सी अ ह्यूमन बॉडी, मतलब मोस्टली जो मंदिर के स्टैचूज हैं, ठीक है, तो उनके एग्जांपल्स अगर देखे जाए, देयर इज वन मोर मंदिर जिसमें कि पूरा का पूरा कामा सूत्र डिपिक्टेड है. खजुराहो. खजुराहो. यस. सो अभी क्या है कि उसमें यू कैन सी दीज 3 लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर. शोल्डर ऐसा है, हिप ऐसा रहता, नीज ऐसे रहता है. उससे वो ना गोल्डन रेशियो बनता 3-4 स्पॉट्स पे, ठीक है. इट्स मोर ब्यूटीफुल दैट वे. सो दैट इज जो भी अपना ट्रेडिशनल डांसेस हैं, you can see it's not stiff at all. It is stiff, but it's asymmetrical. It has a very like all dances have a sense of geometry because they are also bound by the Natya Shastra. Almost all Yeah. traditional dances. So अपना नटराज का भी पोज है, वो हैंड्स इधर रखते, लेग्स इधर रखते. इट्स वेरी एसिमेट्रिक, क्योंकि एक साइड सारा का सारा जा रहा. सो पहले फेस पे जटा पे जाता, फिर हाथ, फिर लेग्स पे, कमर बस अपना राइट साइड में, सारी चीजें लेफ्ट पे, कमर राइट साइड में. तो ऐसा एस बन. सो इससे क्या है ना, वो ब्यूटीफाई हो, इट मेक्स इट मोर मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव टू लुक एट. ये पोजेस जो है हम लोग को कॉमिक बुक्स में जो स्टैंस होता है ना, स्टैंस ड्रॉ करने, ओवर एग्जैजरेट करके मेक इट मोर ब्यूटीफुल. अब लाइव इसका एग्जांपल देखना है, विदाउट द कॉमिक्स, विदाउट द मूर्ति और स्टोन कार्विंग्स. सो आई वाज वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री, पंपिंग आयरन बोल करके, आर्नोल्ड का, ठीक है. सो आर्नोल्ड यूज्ड टू टेक बैलेरिना क्लासेस. बॉडी बिल्डर्स को पोज करना रहता है. Right. They have to pose, they have to show their structure and everything. The documentary में क्या है, he used to take this ballerina classes. Ballet. तो हाँ, तो उससे ना उसको काफी ज्यादा पोजिंग में हेल्प हुई. आर्नोल्ड की पोजिंग देखेंगे तो क्या रूटीन था भाई, अमेजिंग रूटीन. सो ही वाज अ ब्रॉन्ज एज बॉडी बिल्डर, ब्रॉन्ज एज नहीं, ठीक है. ही वाज एन 80s बॉडी बिल्डर. तो उस समय उतने भी ज्यादा एडवांस बॉडीज नहीं दिखने को मिलता था जितने अपने 2010 या फिर अभी देखने को मिलता था. He did was posing, amazing aesthetic posing भाई. The back double bicep वगैरह वगैरह, some poses they invent in, मतलब खुद से भी इन्वेंट करते थे. और बैले करने से ना, मतलब वो उसको बॉडी और खुला, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आया. इट लुक मोर नेचुरल, मोर ब्यूटीफुल, मतलब काफी ज्यादा ब्यूटीफाई हुआ. दैट्स हाउ वी ड्रॉ थिंग्स इन डिजाइन. whenever you are drawing a human, ठीक है, don't draw it very stiff, because humans are never stiff. हमेशा स्टैंड एट ईज में, अटेंशन में कभी नहीं रहता. इवन अटेंशन में इधर उधर जाती है, सर इधर उधर रहता है. सो मतलब इट इज हाउ, मतलब इस हिसाब से ही यू फ्रेम एवरीथिंग. इफ यू आर शूटिंग समथिंग आल्सो, एक्टर्स को कंफर्टेबल, क्योंकि भाई वो पोजेस तब अच्छे से दे पाएंगे, मोर नेचुरल पोज, मोर ऑर्गेनिक एक्टिंग, जिसमें सिर्फ अपना चेहरा यूज नहीं करेंगे, अपने हैंड्स यूज करते हैं, अपने शोल्डर पोजीशंस यूज. They use the whole body. या
उससे क्या है ना, फ्रेमिंग बहुत अच्छी होती है। ऑल इन ऑल इट लुक्स गुड बेसिकली। सो ये काफी सारी चीजों में अप्लाई होता है, डिजाइन प्रिंसिपल्स वगैरह में। तो सिमेट्री का अलग मजा है, लेकिन चालाकी से सिमेट्री करने का तो थोड़ा अलग लेवल। Yeah, I feel, one of the best gifts that an art or design teacher could give to a student would be to have a good eye and just having the patience for observation, right? And even appreciating the beauty in something, it's not something कि हमेशा naturally आएगा. I've seen mostly academically कैसा होता है कि technical skills are important, of course. But there's a lot more that goes beyond it, right? As to आपको समझ रहा है कि आप जो देख रहे हो, आप पूरी तरह से देख रहे हो का in all its aspects. Like so many times it happens कि people have a wrong perception about, oh, art and design is not for me because probably they can't draw a straight line. That's like एक attitude दिया जाता है क्लास में, यार मेरे लिए तो ये नहीं है, मेरे से तो अच्छा drawing होता ही नहीं. But like there's so much fun, pleasure to be gained out of this appreciation as well that you just mentioned through films, music, dance. So I think your mentor has done a really great job, and I really wish more people find such mentors and look at art and design in a new way. या शॉर्ट आउट टू Yeah. आदित्य सर। एक और चीज पता है मेरे को डिजाइन में क्या हेल्प करा? घर वाले डांस क्लासेस भेज दिए थे क्लास 5 से। Okay, wow. हाँ भाई, डांस में ना काफी पोजिंग वोजिंग सिखाया गया, और डांस से ना काफी क्रिएटिव एनर्जी आई। आई थिंक एवरीवन शुड डांस। हाँ Absolutely. भाई, most definitely. Absolutely. या वो जो था ना, मतलब Okay. ही यूज्ड टू होस्ट प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग, साल में एक बार डांस का प्रोग्राम लोहरदगा में होता था। तो स्टेज फियर वगैरह वगैरह वहीं से चला गया था। सो या व्हेन यू डांस तुमको ये That's actually true. My friend has been learning acting professionally. So, उसमें भी before they start teaching you acting, they give you activities which basically make you attuned to your body. क्या बोलता हूँ? On a day-to-day basis. इतना experience ही नहीं करते हम, because we are so much into like some action, we are never inside our body completely, and we don't know the ways in which your body can move and flow is kind of alien to. So I really liked that whole part in like when he was telling me first week was just like activities to free up and just get to know your body better. And yeah, that really connects back to what you said about dance. Ki it's not just about dancing and being free, but you learn so much more about yourself, and then well, it affects and helps you in every way possible. Also, this Yeah. reminds me of a very interesting parallel in our Hindu mythology, which was, again, there are multiple philosophies within Hinduism, and I'll be mentioning both of them. And one is the Vaishnavite philosophy is Vishnu dances to captivate because his eyes are open. He's also the householder. And generally, when you look at Vishnu dancing, let's say it's either Krishna dancing, or it's Krishna and his Leela, or let's say it's Vishnu's form Mohini, which is dancing, let's say, for a purpose. Sometimes the purpose is play, but sometimes the purpose is, or let's say, to protect. But even play, it's in and of itself, even though you don't think of play as something that is purpose or goal oriented, it can be, even though it isn't necessarily in a very direct sense of the word. And then there is Shiva, and at least in Shaivite traditions, or let's say when you look at Lord Shiva, he generally dances with his eyes closed. So it's something along the lines of Vishnu dances to captivate and Shiva dances to meditate. The reason why his eyes are closed when he dances is because he is thoroughly immersed in the internal world. And even when in a lot of our conversations, Dikshant and I have spoken about how generally creators feel a lot of connectivity with Shiva. And that is because a lot of action inherently requires you to go through a lot of self-discovery. It inherently requires you to introspect, look within, and be extremely present with yourself. Like when you experience peak flow, you are in the moment, and the moment is you. As a creator, when you are creating, right, the creative spirit is something that lives through you. That's what even Rick Rubin says, right? You don't take ownership per se of what you create. It's because
it's not you who's creating, it's something along the lines of the creative spirit speaking through you. And when you are creating and when you're in flow, you get to witness the creative spirit. So, like, you become the playground, or rather, you are consciousness and you witness consciousness at the same time. And that's why peak flow is like creating or being thoroughly immersed in creativity is such a meditative experience, which is also like, which ties in really well with what Dikshant said, is that everyone should learn to dance, because dance is basically the only art form that exists in space time. Like, when you paint, you're painting, yes, but the painting culminates, right? With dance, you don't dance to culminate, you Ah, dance to dance. With music, you don't, because dance exists in space and time. Of course, yes, even a painting Yeah. exists in space time, but a painting is more of a static object. And let's say a lot of what the painting does for the artist is something that the artist experiences when they paint. Sure, there is a lot of satisfaction when you finish the painting, but what the painting does, the meditativeness of a painting, is something that you can experience very profoundly when you're creating the artwork. Similarly, when you're dancing, you dance not to get to the end of the dance. You don't dance to get to a particular point in the dance. You dance to dance. When you sing, you don't sing to get to a particular part of the song. You just sing to sing. And it's the act is the end in and of itself. Wow. Great note to end this episode on. Be back, guys, with part two with the same guest. Dikshant Arya will be tuning in again with us. The next We'll be episode. back with the cutie patootie. All right. Okay, all right. Bye. All right. See Bye. you again. See you again. Shoot.